Assalamu alaikum. Today my talk at 5 p.m. is about topography basics. I hope कि मैं थोड़ा सा जो है उसको easy करके बता सकूं, क्योंकि 5 बजे सब थक चुके होंगे, लेकिन still I'll try to wake you up. Thank you. Thank you. So most of us sitting over here, we are all surgeons, and the problem is with surgeons is we make our living by cutting people up, and we love it. So one of them is LASIK. अब LASIK में when not to do is also important. तो जब हम when not to do सीख जाते हैं, तो I think we become a wiser surgeon. So corneal topography is basically a Greek word meaning place, and graphene means to write. So it can be of Earth, Mars, anything. But if it's corneal topography, then it's of cornea, a description of cornea in detail. And tomography, these words are used in place of each other. It's for diagnostic characterization of front and back surface of the cornea, along with pachymetry mapping. So this is tomography. So what are the different types of topographer? There are 3 types. First one is based on the principle of reflection, that is Placido disc. In this, cone reflects miles on cornea, and it measures the curvature of the corneal surface, and from that, height is calculated. It doesn't assess the posterior surface of the cornea. तो जो posterior surface of the cornea नहीं कर रहा, तो जो form fruste keratoconus है, that comes in the back surface of the cornea, तो वो कैसे पता चलेगा? तो इसकी example मैंने ऐसे दी कि front surface पे आजकल CI के exams हो रहे हैं, तो ये बच्चे हैं front surface पे आपको लगेगा कितने अच्छे बच्चे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन when you see the back surface, they all are on mobile. ठीक है ना जी? तो back surface of the cornea is very important. Why? Because form fruste keratoconus, normally it appears first on the back surface of the cornea. The other type is Opscan that we usually use. It's based on the principle of projection. In this, a standardized grid is projected on the corneal surface, and it's analyzed using the elevation map. So Opscan 2 has combined Placido as well as slit scanning, and it measures both the surface of the cornea. The third one, which I will talk in detail, I have taken 8.5 minutes, Aisha, am I right? With the consent of chair and moderator, I have taken 1.5 minute extra. Because topography is a subject, at least it needs 8 to 9 minutes. So Pentacam uses digital rotating Scheimpflug photography principle. जो फोटोग्राफी करते हैं उनमें अक्सर जो कैमरे हैं उसमें यही principle यूज़ होता है. What it does is that it enhances the depth of focus. ये आपको फ्लावर नज़र आ रहा है, अगर इसकी डेप्थ बढ़ा दें तो फ्लावर कितना बेहतर हो गया और इमेज भी डिस्टॉर्ट नहीं हुई. तो दिस इज़ बेसिकली, मैंने कुछ दिन पहले लिया था आने से, तो मैंने कहा कि ये भी शो कर देते हैं. तो 25,000 points are taken and 25 to 50 images are reconstructed in a 3D image. The color coding map was given by Kleist and other scientists, and in this, as we all know, that warm or steep cornea is shown. High diopters, they are shown in this color. Normal is normally green, and cooler color is blue, which shows the flat cornea. And this is the Pentacam refractive map. हमें ये map for quad map पढ़ना आना चाहिए. इसमें what is important? First, check the name and the date of the eye. For a privacy issue, I have taken out the name. You have to check the name and the date and which eye is this. This is right eye. Okay. Then you study the map. Which type of map is this? And then which type, is there any abnormality or is it fine? And then check the scale. नॉर्मली हम स्केल जो चेक करते हैं वो एब्सोल्यूट स्केल होता है पूरी दुनिया में, तो उसी को रेफरेंस माना जाता है. तो इट्स बेटर कि आप उसी पे करें. अगर आप उसको चेंज करते हैं तो फिर आपको ज़रूर देखना चाहिए. एंड देन कंपेयर इट विद द अदर आई, एंड देन फाइनली एक्सप्लेन एंड काउंसिल द पेशेंट वेरी वेल. इसको हम 2 को जूम करके आपको बताते हैं. दिस इज़ द एंटीरियर सैजिटल कर्वेचर मैप. इसमें जी ये स्टीप एक्सिस है, ये नज़र आ रहा है. कोई बताएगा कि इसको क्या कहते हैं जी?
bow tie pattern. So this is symmetrical bow tie pattern seen on this. और इसमें जो dotted line है, they show the pupil, and these steep colors, these are, as you know, the steep corneas, or red, shown with red, and the green one is the flat axis. दूसरा जो मैं बताना चाह रही हूँ वो एलिवेशन मैप है. उसके बाद हम 10 कमांडमेंट्स पे आ जाते हैं. एलिवेशन मैप इज़ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. इसमें आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है. नॉर्मली क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट सेंट्रल 5 मिलीमीटर जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो पूरा लेता है ये आइडियली 8 मिलीमीटर का लेता है. 8 मिलीमीटर का पूरा डायमीटर है, और जो सेंट्रल 5 मिलीमीटर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो पूरा सरफेस है, दिस सरफेस इज़ लाइक अर्थ सरफेस, तो ये सरफेस आइडियली शुड बी 0. लेकिन अगर कोई सरफेस, कॉर्निया की सरफेस कहीं ऊपर है या कहीं इससे नीचे है, अगर हम ये ले लेते हैं सरफेस, तो ये सरफेस इससे नीचे है, तो ये हो गई माइनस में. ये सरफेस इससे ऊपर है, तो ये होगी प्लस में. तो दिस इज शोन इन प्लस एज वेल एज इन माइनस. टेन कमांडमेंट पे जाने से पहले दो चीज़ें बहुत अहम हैं. क्वालिटी स्पेसिफिकेशन. आपने एक टेस्ट किया, वो वैलिड है कि नहीं. अगर तो ये वाइट में आ जाता है तो दिस इज़ वैलिड. अगर ये येलो में आ जाता है या रेड में आ जाता है तो जी रीटेक चाहिए. येलो मीन्स सही टेस्ट नहीं आया, उसको दोबारा कर लें. रेड मीन्स, रेड का मतलब कुछ और भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली रीटेक. क्यू वैल्यू, व्हाट इज क्यू वैल्यू? क्यू वैल्यू इज नॉर्मली द एस्फेरिसिटी ऑफ द कॉर्निया. तो एस्फेरिसिटी क्यू वैल्यू. आइडियल क्यू वैल्यू इज 0.26, -0.26. आइडियल डजंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड. तो जो कहाँ से कहाँ तक नॉर्मल कहलाएगी? 0 to -1 इज नॉर्मल. अबव माइनस में अगर 1 से चला जाए तो प्रॉब्लम है, केराटोकोनस हो सकता है. और अगर प्लस में चला जाए मतलब आपका हो सकता है कोई सर्जरी हुई है, लेजिक हुआ है, PRK हुआ है. तो नाउ आई कम टू फेमस 10 कमांडमेंट्स. वो मिले तो मोजेस को थे, लेकिन मैंने उसको आसानी की, क्योंकि टोपोग्राफी से लोग घबराते हैं और फिर कुछ घबराते नहीं हैं तो वो कर जाते हैं. तो जब कर जाते हैं तो फिर उसके बाद एक्टेजिया दूसरे लोग भुगतते हैं या दूसरी चीज़ें भुगतते हैं. तो बेहतर है कि उसको ईजी किया जाए. कैसे ईजी किया जाए? इसकी सबसे पहले के मैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. के मैक्स इसमें आपको यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे के मैक्स आपको बता रहा है. इट शुड नॉट बी मोर देन 47.2. द सुपीरियर inferior difference on 5 millimeter circle, again 5 millimeter circle, it should not be more than 2.5, and the angle should not be more than 22 degree. अगर आपका ये बना हुआ है तो उसमें एंगल 22 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. वैल्यूज़ more than 8 in the anterior elevation and more than 18 in the posterior elevation map, जो मैंने आपको पिछली इसमें भी दिखा दी थी. इसमें 8 and 18 is the cut off value. तो 8 और 18 से अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि ये the patient is not an ideal candidate for LASIK. दूसरा, अगर astigmatism, if it's more than 1 diopter and the difference in axis is more than 15 degree with the subjective refraction, अगर patient की subjective refraction से 1 diopter का difference है या 15 degree का, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए. Thin corneas less than 470 microns, pachymetry map difference between apex and thinnest. What is this? Is 470 thin cornea, ये यहाँ पे आ जाएगा आपके. और pachymetry map difference ये देखें, ये apex और thinnest के दरमियान, if it's more than 10, don't be cautious. And if y coordinate आपको यहाँ पे नजर आएगा, जो thinnest location के साथ ही शो कर रहा है. This shows vertical displacement, मतलब cornea जो है वो vertically displaced हो रहा है. That means chances of keratoconus. And difference between last is, जो 10th है कमांडमेंट हमारी, वो है जी सुपीरियर एंड इन्फीरियर पैकी एट 5 मिलीमीटर. इफ इट्स मोर देन 30 माइक्रॉन्स तो गड़बड़ है. लास्ट में इसमें ये बताना चाहूँगी कि दिस इज़ बेलन अम्ब्रोसियो, दिस गिव्स अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर 6 मिलीमीटर पे इफ़ इट्स ड्रॉपिंग बिफोर दैट, गड़बड़ है. इफ़ एवरेज पैकीमीट्री प्रोग्रेशन मोर देन 1.2, देयर आर चांसेस ऑफ केराटोकोनस. अगर ये वाइट में ज़बरदस्त, अगर ये येलो में है गड़बड़, अगर ये रेड में
वेरी मच चांसेस. मैं बहुत निटिग्रिटीज़ में नहीं गई हूँ, लेकिन मेन चीज़ मैंने बता दी. ये मेरा एंड था. एक एग्जाम्पल हम पूछ लेते हैं. ये देख के कोई बता सकता है कि विच टाइप ऑफ शुड वी गो फॉर लेजिक इन दिस पेशेंट और नॉट. ये देखें, एक ये क्राइटेरियन आ गया, ये आ गया, ये आ गया. स्टीप कॉर्निया बहुत सारा है. तो क्या कहते हैं भाई, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए जी. जवाब दुरुस्त है, इलेक्ट्रा आपका हुआ. दूसरा, ये पेशेंट, ये लास्ट पेशेंट है, इसमें सारे क्राइटेरिया नॉर्मल है. ही वाज माय कज़न, आई ऑपरेटेड ऑन हिम फॉर लेजिक. And this is the last of PMD, classical crab claw appearance. As you can see, this was the crab claw appearance, and this is the bell-shaped curve in pachymetry. So this was in Urmara. और बस कहना ये है कि आपको लर्न करते रहना है, और स्टिल चेंजेस आती रहेंगी. तू रह न विरद शौक़ है, मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल. ये अल्लामा इकबाल की थी, टीपू सुल्तान की वसीयत. थैंक यू जी. Thank you so much, Professor.